محسن سپیڈ SL3 جا پہنچی۔ موٹر وے صدرن لوپ 31 جنوری کو کھولنے کا فیصلہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے زیر تعمیر پلوں کا مشاہدہ کیا، پتھر ڈالنے کا کام دیکھا۔ FWO کے کیمپ آفس میں اجلاس کی صدارت کی۔ 2 سال کا منصوبہ 6 ماہ میں مکمل ہوگا، 17 ارب لاگت آئے گی۔ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، پنجاب کا الیکشن شفاف ہوگا، کوئی بیوروکریٹ مداخلت نہیں کرے گا۔ اسموگ کے خلاف لڑائی، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ذاتی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ چینی ماہرین ماحولیات آئندہ ہفتے لاہور پہنچیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ کو انسداد اسموگ اجلاس میں بریفنگ۔ محسن نقوی کا غیر معیاری پیٹرول ڈیزل بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، سڑکوں کی دھلائی کا کام جاری رکھنے کی ہدایات کی۔ کہا لاہور میں دوبارہ مصنوعی بارش برسانے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا سروسز ہسپتال کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مزار بی بی پاک دامن بھی گئے۔ مرکزی حصے میں خوبصورت لائٹس لگانے کا بھی حکم دے دیا، دیے جلانے کے لیے جگہ مخصوص کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ مزار بی بی پاک دامن کی تزئین و آرائش کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، صرف 3% کام مکمل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ مزار 31 دسمبر سے قبل ہی زائرین کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی مزار بی بی پاک دامن پہنچے اور پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ مزار کے مرکزی حصے اور گنبدوں کے فنشنگ ورک، تزئین و آرائش کے کام کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ دیے جلانے کے لیے علیحدہ جگہ مخصوص کی جائے۔ مزار کے مرکزی حصے میں خوبصورت لائٹس لگائی جائیں، کام اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیے جائیں۔ مزار کے راستے کو کشادہ کرنے کا کام بھی جلد مکمل کیا جائے۔ محسن نقوی نے سیکریٹری تعمیرات و مواصلات اور سیکریٹری اوقاف کو منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے ہدایات دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی، استحکام اور فلسطینی مسلمانوں کی سلامتی کے لیے بھی دعا کی۔ اس موقع پر صوبائی وزراء منصور قادر، اظفر علی ناصر، عامر میر بھی موجود تھے۔ مشیر وہاب ریاض، آغا شاہ حسین قزلباش، IG پنجاب عثمان انور سمیت متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ جناح ہسپتال کا اعزاز، ایک دن میں 2 کامیاب کڈنی ٹرانسپلانٹ۔ وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی سرپرستی میں مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئے۔ عبداللہ کو والدہ اور توصیف کو ہمشیرہ نے گردہ عطیہ کیا۔ پروفیسر نوید اقبال کہتے ہیں تمام ٹرانسپلانٹ کامیاب رہے۔ ہسپتال نے منفرد اعزاز حاصل کر لیا۔ جناح ہسپتال میں ایک دن میں گردوں کی پیوند کاری کے 2 کامیاب آپریشن کیے گئے۔ وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی سرپرستی میں جناح ہسپتال میں نومبر میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کی مفت سہولت کا آغاز کیا گیا تھا اور اب تک مجموعی طور پر 5 کامیاب ٹرانسپلانٹ کیے گئے ہیں۔ شعبہ یورولوجی اور ٹرانسپلانٹ ٹیم کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر نوید اقبال نے بتایا کہ ایک دن میں 2 کامیاب کڈنی ٹرانسپلانٹ بڑی کامیابی ہے۔ عبداللہ نامی مریض اور اس کی والدہ اور توصیف کو اس کی ہمشیرہ نے گردہ عطیہ کیا۔ دونوں مریض اور ڈونرز صحت مند ہیں۔ پروفیسر نوید اقبال کہتے ہیں کہ جناح ہسپتال میں مزید 8 مریضوں کے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی تیاری کی جا چکی ہے جو مرلہ وار کیے جائیں گے اور وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی سرپرستی میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ اب آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں۔ شدید دھند، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے، جبکہ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 ٹھوکر سے کوٹ سرور تک بند کر دی گئی۔ اسرار خان ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ اسرار خان، آگاہ کیجیے صورتحال کے حوالے سے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج بدستور برقرار ہے۔ آج سر شام دھند کا سلسلہ شروع ہوا اور رات جیسے جیسے گہری ہوتی جا رہی ہے، دھند کی شدت میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت میں لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر موجود ہوں، جسے شام 7 بجے کے قریب حد نگاہ 0 ہونے پر بند کر دیا گیا۔ اسی طرح لاہور اسلام آباد موٹر وے اور لاہور ملتان موٹر وے کو بھی جزوی طور پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے عارضی طور پر بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 کو لاہور سے کوٹ سرور تک، جبکہ لاہور ملتان موٹر وے M3 کو فیض پور سے سمندری تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ شہریوں سے بھی موٹر وے پولیس حکام نے یہ درخواست کی ہے کہ وہ دن کے اوقات میں سفر کریں، اگر رات کے وقت سفر کرنا مجبوری ہو تو متبادل راستوں پر محتاط انداز میں گاڑی چلائیں، گاڑیوں کی رفتار کم رکھیں، فوگ لائٹس کا استعمال بھی یقینی بنائیں۔ دوسری جانب شہر کے مضافاتی علاقے اور سرحدی علاقے جو ہیں وہاں پر بھی اس وقت شدید دھند پائی جا رہی ہے۔ ان علاقوں میں رائیونٹ سٹی، مانگا منڈی، برکی، ہڈیارہ سمیت دیگر علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر بھی شدید دھند کی وجہ سے حد نگاہ 100 سے 150 میٹر تک رہ گئی ہے اور شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جی ٹھیک ہے اسرار خان، بہت شکریہ آپ کا۔ لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس اور رینیول آف لائسنس کی فیس میں 1000% تک بڑا اضافہ کر دیا گیا۔
लाइसेंस फीस अब 5 साल की बजाय 1 साल बाद वसूल की जाएगी। लाइसेंस की फीसों में 20 साल बाद बड़ा इजाफा किया गया है। 1 जनवरी से नई फीसों की वसूली की जाएगी। लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और रीन्यूअल ऑफ लाइसेंस का इतलाक अब 5 साल की बजाय हर साल होगा। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक लर्नर लाइसेंस की फीस 5 साल के लिए 60 रुपए मुकर्रर थी। अब हुकूमत ने हर साल के लिए 500 रुपए मुकर्रर कर दी है। मोटरसाइकिल लाइसेंस की 5 साल फीस 550 रुपए मुकर्रर थी। अब हर साल 500 रुपए वसूल किए जाएंगे। मोटरसाइकिल रिक्शा की 5 साल फीस 550 रुपए थी। अब हर साल 500 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। मोटर कार और जीप के लाइसेंस की 5 साल फीस 950 रुपए थी। अब 1800 रुपए हर साल देने होंगे। माजूर अफराद के लिए लाइसेंस की 5 साल फीस 20 रुपए मुकर्रर थी। पंजाब हुकूमत ने माजूर अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस की फीस खत्म कर दी। अब आपको बताते चलें, लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में शदीद धुंध। एयरपोर्ट के रनवे पर हद निगाह 50 मीटर रिकॉर्ड की गई। रनवे तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई, जबकि पायलट्स को लैंडिंग और टेक ऑफ से कबल ATC से इजाज़त लेने की हिदायत की है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। सईद, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह लाहौर एयरपोर्ट के तरफ में भी शदीद धुंध का राज है और शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट रनवे के ऊपर जो खत्ते निगाह है वो 50 मीटर है, वो रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद रनवे तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए उसके माहौल है वो साजगार ना होने की वजह से जुज़वी तौर पर उसे बंद किया गया है। और ज़राए के मुताबिक तमाम एयरलाइंस के फ्लाइट्स को लैंडिंग और टेक ऑफ से कबल ATC हुकाम से इजाज़त लेने की हिदायत है वो जारी कर दी गई है। ज़राए का ये कहना है कि शारजा जाने वाली प्रवास PK 185 को मंसूख कर दिया गया है, जबकि लाहौर से कुआलालंपुर जाने वाली प्रवास PK 898 को भी मंसूख करने का फैसला है वो किया गया है। जद्दा से आने वाली एयरबेस की प्रवास PA 471 को भी मंसूख कर दिया गया है, जबकि अदर प्रवासों के औकातकार है वो तब्दील करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक दुबई से लाहौर आने वाली प्रवास PK 204 के औकातकार में तब्दील। जी ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस के अफसरान के लिए अच्छी खबर है। अफसरान के 313 से ज़ायद घर बनेंगे। हुकूमत ने बेदियां रोड पर नए घर बनाने की मंजूरी दे दी। SPC एडिशनल IG तक के अफसरान के लिए घर बनाए जाएंगे। मंसूबा 4 अरब के फंड से मुकम्मल किया जाएगा। के आला अफसरान के लिए लाहौर में 300 से जायद घर बनेंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने बेदियां रोड पर नए घर बनाने की मंजूरी दे दी। SP से एडिशनल IG रैंक के अफसरान के लिए नए घर बनाए जाएंगे। पुलिस अफसरान के लिए नए घर बनाने के लिए हुकूमत को समरी भिजवाई गई थी, जिसमें इब्तिदाई तौर पर 2.25 अरब के करीब फंड्स की मंजूरी दी गई है। घरों का मंसूबा 4 अरब के फंड से मुकम्मल किया जाएगा। नए घर बनाने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। रवा माली साल में तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके कॉन्ट्रैक्ट का अजरा किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, कॉलेज यूनिवर्सिटी के 10,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक मिलेंगी। तलबा को आसान इकसात पर मोटरसाइकिल दी जाएगी। जबकि हुकूमत 2.5 अरब रुपए खर्च करेगी। इस हवाले से चेयरमैन PND ने प्लान बना लिया। हतमी मंजूरी निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी देंगे। पंजाब हुकूमत का तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए बड़ा मंसूबा। निगरान हुकूमत ने तलबा और तालिबात को सस्ती और रायती कीमत पर E-बाइक्स देने का फैसला किया है। इस फैसले से ज़राए का कहना है कि मंसूबे पर 2.5 अरब रुपए का खर्चा आएगा। निगरान हुकूमत ने इस मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से चेयरमैन PND ने कल बरोज बुध को इजलास तलब कर लिया है। इजलास में मंसूबे के खदोखाल का जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी मंसूबे की हतमी मंजूरी देंगे। ज़राए के मुताबिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के 10,000 तलबा और तालिबात को आसान इकसात पर E-बाइक्स दी जाएंगी। ये मंसूबा पंजाब बैंक के जरिए शुरू किया जाएगा। इस मंसूबे से आलूदगी की शरह में भी कमी आएगी। 7,200 PEF पार्टनर स्कूल 2 माह से मुआवजों से महरूम। फंड्स की अदम फराहमी के बायस जनवरी की अदायगियां भी ना होने का खदशा है। 7,200 PEF पार्टनर स्कूलों को नवंबर और दिसंबर के मुआवजों की अदायगी ना की जा सकी। मुआवजों की अदम अदायगी के बाइस पार्टनर स्कूलों के 10,000 से जायद असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हैं। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स शब्बीर हाशमी का कहना है कि जनवरी भी शुरू होने वाला है, फौरी तौर पर गुज़िश्ता 2 माह के मुआवजों की अदायगी की जाए। शब्बीर हाशमी ने मजीद कहा कि हुकूमत महंगाई के तनासुब से पार्टनर स्कूलों को फी तालिब इल्म 1,000 रुपए तक मुआवजे में इजाफा करे। उनका कहना था कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पार्टनर स्कूलों को फी तालिब इल्म 550 रुपए मुआवजा अदा करता है। कम मुआवजे के 22 असातिज़ा की तनख्वाहें और बिल्स अदा करना मुश्किल है। शाहमीरा हनफिया चौक में गैस का बहरान, अहले इलाका का शदीद एहतजाज। जबकि दूसरी जानिब मोहर नवाल खुर्द के इलाके में भी गैस की अदम दस्तयाबी बरकरार है।
इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। चाहमीरा हनफिया चौक में गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। रिहायशी मर्द ख़वातीन गैस की अदम फराहमी पर घरों से बाहर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गैस नहीं आ रही लेकिन बिल आ रहे हैं, बिल भी जारी करना बंद कर दें। पहले दोपहर के वक्त गैस आ जाती थी, अब कुछ रोज से वो भी नहीं आ रही, खाना भी नहीं खा सकते। जिंदगी का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। रिहायशियों ने मजीद कहा, महंगाई के इस दौर में LPG और लकड़ियों पर कब तक गुजारा करें, इंतजामिया नोटिस लेकर मसला हल करे। गरीब बड़ी मुश्किल से अपने बिल अदा करते हैं, उन इलाकों में गैस नहीं आती, ना बिजली आती है, लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ के रहने वाले बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। हमारी दरख्वास्त है इन साहब इक़्तिदार से तो खुदा के लिए इन लोगों का सोचें जो यहाँ रहते हैं, जो भूख में जिंदगी गुजार रहे हैं। मोहनवाल खुर्द के इलाके में गुज़िश्ता 4 रोज से गैस नहीं आ रही। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि 100 से ज्यादा घरों में गैस गायब होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। 4 रोज से मुसलसल कंप्लेन कर रहे हैं, हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं, कह रहे जी 48 घंटे में आएंगे, 24 घंटे में आएंगे, लेकिन अभी तक किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। 5-6 दिन हो गए हम मुसलसल बंद है, यानी कि चूल्हे हमारे बंद है। हम पहले मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं, शाम को एक सिलेंडर भर के लेके आते हैं 300-400 का, जो मजदूरी करके लाते हैं। शदीद महंगाई में लकड़ियां खरीदना पड़ रही हैं। इंतजामिया अपील पर कान नहीं धर रही। अहले इलाका ने महकमा सुई गैस से गैस बहाल करने का मुतालबा किया है। लेस्को की जानिब से खराब होने वाले मीटर्स के मामले पर नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गईं। कवानीन के मुताबिक 3 माह की बजाय 1 साल तक खराब मीटर्स तब्दील ना होने से सार्फिन से भारी भरकम बिल्स वसूल कर लिए गए। कंपनी की जानिब से मजमूई तौर पर 1,32,000 सार्फिन के मीटर्स को डिफेक्टिव करार दे दिया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक डिफेक्टिव कोड के हामिल मीटर्स को 1 माह से लेकर साल गुजरने तक तब्दील नहीं किया गया। नेपरा कवानीन के मुताबिक खराब होने वाले मीटर्स को 3 माह के दौरान तब्दील करना होता है। लेस्को में 3,571 खराब मीटर्स को 7 से 12 माह गुजरने के बावजूद तब्दील नहीं किया गया, जबकि 4 से 6 माह खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 53,300 तक जा पहुंची। दस्तावेजात मुताबिक 2 से 3 माह तक खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 52,548 रिकॉर्ड की गई, जबकि 1 माह से ज्यादा अरसे तक डिफेक्टिव होने वाले मीटर्स की तादाद 22,671 रिकॉर्ड की गई है। अभी आपको अपडेट करें, अब्दुल रऊफ एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात हो चुके हैं। राना हबीब सेक्रेटरी सेटलमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात हो चुकी हैं, जबकि मोहम्मद इकराम मलिक डायरेक्टर जनरल PHA साहिवाल तैनात। सलमान अहमद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मियांवाली तैनात किए गए, जबकि सकलैन सलीम की ग्रेड 18 में तरक्की डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमा बल्दियात तैनात हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। तैनातियों के हवाले से अब्दुल रऊफ एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात हुए, जबकि राना हबीब सेक्रेटरी सेटलमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात हुए। मोहम्मद इकराम मलिक डायरेक्टर जनरल PHA एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मियांवाली तैनात हुए। सकलैन सलीम की ग्रेड 18 में तरक्की, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमा बल्दियात तैनात हुए।